سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے لیے اربوں ڈالر کی ضرورت ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور بحالی کے لیے فنڈز میں عالمی برادری کا تعاون چاہتے ہیں۔ معاشی مشکلات کے ساتھ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد کی آبادکاری اہم چیلنج ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں کی مقررہ مدت میں تکمیل قومی ترجیح قرار۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اجلاس میں سی پیک پیش رفت کا جائزہ۔ ML1 کراچی سرکلر ریلوے، کراکرم ہائی وے سمیت شمسی توانائی اور پن بجلی کے منصوبوں پر گفتگو۔ وزیراعظم کی سی پیک منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ آئینی طریقے سے اقتدار سے ہٹایا جانے والا شخص ریاست کو بلیک میل کر رہا ہے۔ ریاست کے معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں حکمران اشرافیہ کی جانب سے جو غلطیاں ہوئیں آج اسی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کسی کو ریاست کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ غریدہ فاروقی اور سلیم صافی کے خلاف گھٹیا گفتگو فورن فنڈڈ فتنے کی ذہنیت، تربیت اور فطرت کی عکاس ہے۔ ریاست مدینہ پر سیاست کرنے والے کے شر سے قومی مفادات، ادارے اور شہداء نہ بچ سکے۔ جس جھوٹے نے معاشرے سے صحیح اور غلط کی تمیز مٹائی، اسے خواتین اور صحافیوں کی عزت کی کیا تمیز۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کی صحافیوں کے بارے میں گفتگو پر رد عمل۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس 386 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 42,260 پر بند ہوا۔ 25 کروڑ 2 لاکھ 66 ہزار سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا۔ 213 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 123 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی۔ اور نامور اداکار سلیم ناصر کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 33 برس بیت گئے۔ انکہی، آخری چٹان، آنگن ٹیڑھا اور جانگلوس سمیت پاکستان ٹیلی ویژن کے کئی ڈراموں میں ان کی یادگار پرفارمنس آج بھی ذہنوں میں تازہ ہے۔ شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں سلیم ناصر کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا۔ السلام علیکم، نیوز ایٹ 6 شو کے ساتھ خوش آمدید۔ میں ہوں شاہد نسیم اور میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے 130 بلین ڈالر کے بیرونی قرضوں کو ری شیڈول کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، تاہم اسے موسمیاتی تبدیلی سے منسلک سیلابی تباہ کاریوں سے ہونے والے سڑکوں، پلوں اور دیگر انفراسٹرکچر کی تعمیر نو جیسے بڑے منصوبے کے لیے بھاری رقم کی ضرورت ہے۔ فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ قرض کی ری شیڈولنگ یا موٹرم جیسے کسی بھی اقدامات کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ ضرورت کے مطابق اضافی فنڈز مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے لیے سیلاب سے ہونے والے نقصان کے تخمینے کی بنیاد پر امداد کا کہہ رہے ہیں، جو ملک کی 75 سالہ تاریخ کی بدترین قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے مطالبات اور جو کچھ انہیں موصول ہوا ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جو دن بدن وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وسائل جمع کرنے میں بین الاقوامی برادری کی ناکامی سے ریاست میں سیاسی عدم استحکام کا خطرہ بھی ہے، جبکہ اپوزیشن لیڈر عمران خان اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی صورت میں وہ بنیادی اہداف کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے پاکستان کی فنڈ ریزنگ کی کوششوں کو بڑھانے کے لیے ڈونرز کانفرنس کی میزبانی کا وعدہ کیا ہے۔ کانفرنس کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی، لیکن انہیں توقع ہے کہ یہ نومبر میں پیرس میں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ سیلاب کے بعد پاکستان کی تعمیر نو کے لیے درکار رقم کے بارے میں اپنے جائزے کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ پاکستان میں مانسون سیلاب نے نشیبی علاقوں سمیت سندھ اور بلوچستان کو تباہ کر دیا۔ دیہی علاقوں میں پانی کھڑا ہے جو جلد ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وہ صرف موسمیاتی انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، معاوضے کا لفظ بالکل استعمال نہیں کر رہے۔
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बेघर ख़ानदानों की मदद के लिए खैमे, अद्वियात, फूड पैक और पीने के साफ़ पानी जैसी अशिया ख़रीदने के लिए रियासती ख़जाने को इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर हंगामी इमदाद के लिए अपना केस तैयार कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेन लाइन 1 ML1 मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के फ्लैगशिप का ये मंसूबा पाकिस्तान की बंदरगाहों को चीन और वस्त एशियाई रियासतों से जोड़कर मुल्की मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। इस्लामाबाद में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी और दीगर चीनी मंसूबों पर पेशरफ्त पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों से रेल के जरिए राब्ता पूरे खित्ते की तामीर और खुशहाली का बाइस बनेगा। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा पाकिस्तान रेलवे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और विफाकी अलामत है। मेन लाइन 1 मंसूबा पाकिस्तान रेलवे की माशी बहाली और तरक्की का बाइस बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के शमसी तवानाई के मंसूबों में चीनी कंपनीज की सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत गुज़श्ता 4 साल के स्याह दौर से सी पैक के तातुल के शिकार मंसूबों में नई रूह फूंककर उन्हें तरजीही बुनियादों पर बर्क रफ्तारी से तकमील कर रही है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सी पैक अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मरहले से निकलकर बिजनेस टू बिजनेस वाले मरहले में दाखिल हो चुका है। सी पैक के तहत अब पाकिस्तान में सनती तरक्की के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे कराची में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने और कराची के रहने वालों को महफूज सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इजलास में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों बिलखुसूस ML1 कराची सर्कुलर रेलवे, कराकरम हाईवे और दीगर मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे और पन बिजली के मंसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। इजलास को सी पैक मंसूबों की मौजूदा सूरत हाल, जारी काम और मुस्तकबिल में इन मंसूबों की रफ्तार को तेज करने के लिए जामे लाहे अमल पेश किया गया। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म का कराची सर्कुलर रेलवे को सी पैक का हिस्सा बनाने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सी पैक मंसूबों की मुय्यना मुद्दत में तकमील को कौमी तरजीह करार देते हुए उन पर काम जारी रखने की हिदायत की। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मलीर का वो इलाका जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जो है वो जीता है। अब्दुल हकीम बलोच NA 237 की सीट उन्हें जीती है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ज़िशान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और ये जो इजहार तशक्कुर रैली है ये इस वक्त किस मकाम पर पहुँची है और आगे इसकी मंजिलें क्या हैं? जी बिल्कुल, ये मलिक के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है। ज़्यादा तशक्कुर रैली जो है वो वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में जो है वो मलिर 15 से निकली और मलिर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अभी इस वक्त मेमन गोड से गुजर रही है और इस वक्त ये जानब गोड जो है दरसानो चन्नो में जो एक तरफ जा रहे हैं, जहाँ से अब्दुल हकीम बलोच जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है जिनने इंतखाब में जो NA 237 की सीट जो है उन्होंने जीती है। और इसी हवाले से जो है ये रैली का इनेकाद किया गया ताकि अवाम का तशक्कुर किया जाए, जिससे अवाम ने अपना हक राय रही इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाया। और ये एतमाद था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, जिसके लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है खुद जो है यहाँ मौजूद है अवाम के दरमियान। और यहाँ पे बताना चलूँ कि जब से मलिर 15 से जो ये रैली का काफिला शुरू हुआ है तो यहाँ पर लोगों ने पुरतबाक इस्तकबाल किया है और उनका फ़कीदुल मिसाल जो है इस्तकबाल किया गया है। दोनों अतराफ पे जो है लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और रास्ते में जो है मुख्तलिफ खुशामदीद के कैंप जो लगाए गए जिसमें लोगों ने पुरतबाक इस्तेमाल किया। यहाँ पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई और उनके नारे जो है वो नारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लगाए गए, उनके हक में लगाए गए। और जो लोग बल्कि खवातीन जो है वो भी सामने आके बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो है वो जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। और इस वक्त ये काफिला जो जारी है और ये चल रहा है, लेकिन मुख्तलिफ रास्तों में जो है वो जगह जगह पर जो है वो आप देख रहे हैं कि वो मुस्तकबिल कैंप जो है छोटे लगाए कुछ इस्तकबालिया कैंप जो है वो मुस्तकबिल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये काफिला जो है दस्तानो शानों की तरफ जाने जो है रवा दवा है। अच्छा ज़िशान, हम हमारे नाज़रीन भी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे काफ़ी सुस्त रवि के साथ ये काफिला जो है आगे की जानिब गामजन है। आपको क्या लगता है लगभग मजीद कितना टाइम लग सकेगा मंजिल मकसूद तक पहुंचने में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल रुकी हुई है गाड़ी, क्योंकि लोगों की इतनी बड़ी तादाद है, चारों तरफ से लोगों ने गाड़ी को भी घेरा हुआ है। तो इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अगर रास्ता में बता चलूँ तो इस वक्त अभी 10 से 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन ये तवील इस कदर हो गया कि जैसे आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं नाज़रीन के आवाम के चल में रफ़ी जो है इस वक्त अपने लीडर जो है महबूब लीडर की जो है वो इस्तकबाल के लिए और वहाँ पे जो है उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रास्ते को आपने देखा कि गाड़ियों की एक कारवां
जो है उसे साथ साथ चल रहा है, तो इसकी वजह से रात को थोड़ा तवील होता जा रहा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पहुंचा जा सके, क्योंकि बहुत जो है ना आवाम जो है अपने लीडर को सुनना चाह रही है। लेकिन सही, बहुत शुक्रिया ज़ीशान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची में मलीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ये रैली जो है अपने रास्तों पर रवां दवा है। इस हवाले से आपको मज़ीद भी जो सूरत हाल होगी उससे गाहे बगाहे आगाह रखेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि कौमी असम्बली में वफाकी वज़रा समेत अरकान की अक्सरियत ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल फ़ौरी तवज्जो की मुतकाज़ी है और इस हवाले से मुश्तरका मौसर हिकमत अमली अपनाने और मसले के पायदार हल के लिए आला सतह के सच और मफाहमती कमीशन बनाने की भी जरूरत है। कौमी असम्बली के इजलास की तफसील हमें बता रहे हैं अरसलान असद। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी की सदारत में होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में नुक्ता इतराज पर सरदार अख्तर मेंगल ने ऐवान की तवज्जो बलूचिस्तान में अमन व अमान की खराब सूरत हाल और बेगुनाह अफराद की हलाकत की जानिब मबजूल करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कई हुकूमतें बदल गईं, तहम बलूचिस्तान की सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने हुकूमत की जानिब से वजाहत देते हुए सरदार अख्तर मेंगल के मौक़िफ़ की तायीद की। उन्होंने कहा कि हमें रियासत को दरपेश मसाइल और ख़तरात से मुंह मोड़ने की बजाय उनका इदराक करते हुए उनका सियासी हल तलाश करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी की जंग ये एक कॉन्टिन्यूस कुर्बानियों की एक दास्तान है जो दुनिया में कोई और मुल्क जो है इसको शेयर नहीं करता। ये पाकिस्तान जो है इस जंग में हरावल दस्ते की हैसियत से पिछले 40 साल से लड़ रहा है। ये एक्नॉलेज इंटरनेशनली नहीं हुई, लेकिन हमें कम से कम मुल्क के अंदर जो है इसका कोई इलाज ढूंढना चाहिए कि हमारी यहाँ पे जो इतनी कुर्बानियाँ दी गई हैं उनका ज़िया ना हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि माजी में भी हुकूमतें बदलती रहीं, तहम किसी ने भी पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। तहम हाल ही में इमरान खान को एक जमहूरी अमल के जरिए इक़्तिदार से अलग किया गया तो उन्होंने रियासत को नुकसान पहुंचाने की ठान ली। पाकिस्तान की रियासत किसी की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मुल्तान के निश्तर अस्पताल की छत पर मिलने वाली दर्जनों लावारिस लाशों के मामले को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए पंजाब हुकूमत से अपील की कि वो इंसानी बुनियादों पर इन लाशों के DNA टेस्ट कराए ताकि इनकी शनाख्त हो सके। मौसमियाती तब्दीली की वजीर शहरी रहमान ने भी सरदार अख्तर मेंगल के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब या शनाख्त नहीं होती, वो असले के जोर पर अपना मजमूम एजेंडा अक्सरियती आबादी पर मुसल्लत करना चाहते हैं जिनकी उन्हें हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। जहां तक बलूचिस्तान की बात है, यहाँ तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की जरूरत है और जिंदा कौमें, जिंदा जमहूरी कौमें जो हैं, मैं समझती हूँ हर मसले का कितना भी तवील हो, कितना भी पेचीदा हो, अपने पार्लियामान के अंदर वो हल ढूंढ सकती है। इंसानी हकूक के वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने आला सतह कमीशन के कयाम की हिमायत करते हुए कहा कि जो बातें इस ऐवान में की जा रही हैं वो कौम की आवाज हैं। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि मुल्क को दरपेश तमाम मसाइल का हल आइन की मुकम्मल पासदारी में है। मौलाना अकबर चतराली और मोहसिन दावर ने कहा कि बलूचिस्तान और सवात के हालात फौरी आला सतह तवज्जो के मुतकाजी हैं। इससे पहले वक्फे सवालात में बाज वजारतों के मुतल्लिका वफाकी सेक्रेटरीज के ऐवान में अदम मौजूदगी का डिप्टी स्पीकर ने सख्त नोटिस लेते हुए हिदायत की कि मुतल्लिका सेक्रेटरीज वक्फे सवालात के दौरान अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरसलान असद की खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि गरीदा फारूकी और सलीम साफ़ी के खिलाफ घटिया गुफ्तगू फॉरेन फंडेड फितने की ज़हनियत, तरबियत और फितरत की अक्कास है। इमरान खान के सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मदीना की रियासत पर सियासत करने वाले के शर से कौमी मफादात, इदारे और शुहदा न बच सके। जिस झूठे ने मुआशरे से सही और गलत की तमीज़ को मिटा दिया, उससे ख़वातीन और सहाफ़ियों की इज़्ज़त की क्या तमीज़ होगी। नाज़रीन, इसी हवाले से कुछ मजीद बात भी करेंगे। इस वक्त हमें लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सलमान गनी साहब ने। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खान साहब का एक बयान, उसके ऊपर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने एक रद्द-ए-अमल भी जारी किया है। मैं चाहूँगा, आप चूँकि इस फील्ड से भी वाबस्ता हैं, सहाफ़ियों से आपके रवाबित भी रहते हैं, ख़ुद भी आप इस शोबे से भी वाबस्ता एक हवाले से हैं, क्या कहेंगे इस रद्द-ए-अमल के ऊपर? और फिर ख़ास तौर पर जब इस तरह के बयानात इतने बड़े लीडर की जानिब से, एक पार्टी का चेयरमैन है वो जब बयान जारी कर रहा है और इस तरह के ख्यालात का इजहार कर रहा है, तो क्या असर पड़ता है आम आदमी की या जो सहाफ़ी है उसकी जो जहनी कैपेसिटी है उसके ऊपर? देखें, सहाफत और सियासत का चोली दामन का साथ रहा है और पाकिस्तान की सियासी तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी कभी अहले सियासत पे मुश्किल वक्त आया तो सहाफ़ी उनकी आवाज़ बने हैं, और जब भी पाकिस्तान की
सहाफत को किसी ने टारगेट किया है तो अहले सियासत से उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन एक नया रुझान पाकिस्तान के अंदर देखने में आ रहा है जिसमें पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने जिस तरह सलीम साफ़ी साहब को टारगेट किया है, देखिए सलीम साफ़ी साहब एक मोतबर और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो इख्तिलाफ राय करने का हक रखते हैं। और अगर उन्होंने खान साहब को से कोई इख्तिलाफ किया है, बल्कि मैं तो आज भी उनका कालम देख रहा था कि उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से खुद मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ पे भी तनकीद की है। लिहाजा एक मोतबर और क्रेडिबल जर्नलिस्ट को लिफाफी करार देना, और मैं समझता हूँ कि आप जवाबन सलीम साफ़ी साहब का रोल देखें कि उन्होंने पर्सनल होने की बजाय उन्होंने तो एक कमेटी बनाने की बात की है जिसमें खुद तहरीके इंसाफ के जो मोतबर लोग हैं उनके नाम दिए हैं कि मुराद सईद साहब, फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब की इन पे कमेटी बना दें और तहकीकात करवा लें कि अगर मेरे पे ये इल्ज़ाम साबित हो जाए तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, और अगर मैं ये बात पे साबित कर दूं तो फिर वो सियासत से तौबा कर लें। और दूसरी तरफ उन्होंने देखें गुरीदा फारूकी के हवाले से जो बात की है कि जी वो मर्दों में जा घुसती है, ये बात सरासर अखलाकियात से आ रही है। ये मैं समझता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त पे असरअंदाज होने के मुतरादिफ है और ये ज़ेब नहीं देती उन्हें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि खान साहब को अपने तर्ज़ अमल पे तब्दीली लानी चाहिए, वरना अगर उनका अपना दौर देख लें कि खान अगर पाकिस्तान की मीडिया का सबसे ज़्यादा किसी पे एहसान है तो वो खुद जनाब इमरान खान पे है कि उनकी सियासत को टेक ऑफ कराने, उन्हें मसनद इक़्तिदार पे पहुँचाने में असल रोल पाकिस्तान की मीडिया का था। लेकिन फिर उनके अपने अखबार के अंदर देखें कि कितने जर्नलिस्टों को गोलियां मारी गई, उन्हें जेलों में पहुंचाया गया, उनको नौकरियों से निकलवाया गया, उन पे मुकदमात बनवाए गए। मेरा ख्याल ये किसी सियासतदान का तुरह इम्तियाज नहीं है, और अगर वो इस तरह जर्नलिस्टों को टारगेट करने पे उतराए तो ये उनकी सियासत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अलबत्ता मैं एक गिला और शिकवा जरूर करना चाहूँगा कि जो इलेक्टेड हमारे लोग वहाँ पर मौजूद थे जिनके सामने ये उन्होंने टारगेट किया हमारे साथियों को, उनको वहाँ पर उस इजलास का बाइकाट करना चाहिए था। अच्छा सलमान गनी साहब, एक और अहम बात जो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि खान साहब ये कहते हैं कि मीडिया का दौर नहीं है, असल दौर तो सोशल मीडिया का है और उसी की ज़्यादा से है। तो जो लोग जिन्होंने अपनी मीडिया में अपनी पूरी ज़िंदगियाँ दे दी, अपने आपको जो है वक्फ कर दिया उसके लिए, अगर वो इतने ही बेवकत हैं तो खान साहब तो उनसे गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, उनको इंटरव्यूज़ भी दे रहे होते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए ये वो मीडिया के रोल की नफी कर रहे हैं। मैं खान साहब की जब उन्होंने पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैं उसमें भी शामिल था। पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया पाकिस्तान की तारीख है, इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया का अपना रोल है, सोशल मीडिया का अपना रोल है। देखिए मैं समझता हूँ कि बहसीयत मजबूरी वो मीडिया के रोल को अगर टारगेट कर रहे हैं और अगर कुछ साथियों को स्पेसिफिक उनके नाम लेकर उन पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं तो ये बात खुद उन्हें ज़ेब नहीं देती। और मैं समझता हूँ कि इस तरह जब वो सहाफ़ियों को टारगेट करेंगे तो ये दरअसल मीडिया पे असरअंदाज होने की कोशिश है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि आखिर एक सियासतदान जर्नलिस्टों के सामने बैठकर उनके कुछ साथियों के बारे में इस तरह की इल्ज़ाम तराशी कर रहा है और एक खातून के बारे में जो बात कर रहा है वो उन्हें ज़ेब नहीं देती। मैं तो समझता हूँ कि जो हमारी ख़वातीन है जो आके पेशावराना जिम्मेदारियाँ अदा करती हुई मुश्किल मराहल से गुजरती हैं, उनकी तो हौसला अफजाई होनी चाहिए, ना कि जो बात उन्होंने गुरीदा फारूकी के बारे में कही है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं ये उनकी पार्टी को कहता हूँ कि वो खान साहब पे प्रेशर डालें कि वो अपने तर्ज अमल पे नजरसानी करें और ये बात हजम होने वाली नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया सलमान गनी, सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहीं पर कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है, मुल्क की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी पर मुत्तफ़िक होना होगा। इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को बहुत से मसाइल का सामना है। सैलाब के बाइस मौशी मैदान में बहुत से चैलेंजेस पैदा हुए, लेकिन पहले भी मईशत ठीक करके दिखाई है, अब भी दिखाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि दिसंबर में $1 अरब के बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं जिनकी बरवक्त अदायगियां होंगी। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने में कामयाब हो गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि IMF से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद करेंगे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स 386 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,260 पर बंद हुआ है। बाजार हिस्स में 25 करोड़ 2,66,000 से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ जिनकी मालियत
6 अरब 65 करोड़ 84 लाख रुपए से ज़ायद थी, जबकि बाजार हिस्स में 213 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 123 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 24 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मलिक शाहिद सलीम साहब ने, उनसे इस हवाले से कुछ बात करेंगे। साबिक चेयरमैन हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनसे इस हवाले से कुछ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे जो हमारी इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में जो तेज़ी का रुझान हम देख रहे हैं, 100 इंडेक्स जो है वो 386 पॉइंट्स पर बंद हुआ है, डॉलर की कीमत हमने देखा पिछले दिनों में कम हो गई थी और फिर उसके ऊपर कुछ जो है वो उसके अंदर दोबारा से इंक्रीज हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा ओवरऑल जो मजमूई सूरत हाल है इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। फर्स्ट ऑफ ऑल जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए प्रोग्राम में जी। देखिए आपके गुज़श्ता जो प्रोग्राम्स हैं एपिसोड उसमें भी बात हम करते रहे हैं और वही सिलसिला अभी जारी है कि मेन चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी है जी। और माशी इस्तेकाम तब आता है जब सियासी इस्तेकाम मुल्क में होता है। अब पिछले आप 10-15 दिन को ही सिर्फ अगर उठा के देख लें, अगर हम इसको वहाँ से स्टार्ट लें, इसहाक डार साहब का फाइनेंस मिनिस्टर का आना, ज्वाइन करना, ओथ लेना, तो एक लोगों को एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो गया कि जी वो पहले भी जब गवर्नमेंट में थे तो हमारा डॉलर जो था वो जिस भी तरीके से था लेकिन 104-105 रुपए पे काफ़ी सालों तक स्टेबल रहा था। तो ये वही शख्स हैं, तो ये दोबारा अब डॉलर को इस्तेकाम देंगे और इसको रुपए की कदर में इस्तेकाम आएगा। तो वो यही हुआ कि वो आए और डॉलर को उन्होंने कुछ बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन इन द मीन वाइल जिस तरीके से ऑन द अदर साइड अपोजिशन और एक बाई इलेक्शन होने जा रहा था, तो उस वजह से फिर एक अनस्टेबिलिटी प्रिवेल करना शुरू हो गई। और जो ही अनस्टेबिलिटी प्रिवेल करती है तो डॉलर जो है वो करेंसी एक्सचेंज हमारा काफ़ी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। एट द सेम टाइम जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। अब जो ही बाय इलेक्शन खत्म हुआ है, व्हाट्सएवर द रिजल्ट कम्स, लेकिन हमें ये देखना होता है कि बिजनेस कम्युनिटी, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे आपका लोकल इन्वेस्टर होता है, वो मुल्क की सियासी इस्तेकाम को देख रहा होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। उसके तहत ही जो स्टॉक एक्सचेंज आज भी अच्छा हुआ, मार्केट 386 पॉइंट के साथ प्लस में गई है, तो वो इस चीज़ का ही अंदेशा है कि इसी चीज़ का एक रिजल्ट आ रहा है कि जी अल्लाह करे कि हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि अगर कोई लॉन्ग मार्च होता है, कोई धरना होता है, कोई चीज़ होती है, तो उससे फिर एक अनस्टेबिलिटी आती है और उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो मुल्क का होता है और मुल्क की मईशत का होता है। और मुल्क की मईशत का नुकसान जो है वो डायरेक्ट उससे बिजनेस कम्युनिटी और सारी आवाम जो है वो मुतासिर होती है। तो मेन चीज़ जो फोकस हमें रखना है एज अ कौम, एज अ नेशन, चाहे जो भी पार्टी हो और जिस भी पार्टी से ताल्लुक हो, चाहे हुकूमत हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक शाहिद साहब, बड़ी अहम बात की आपने, ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात जो शुरू दिन से हुकूमत भी करती आ रही है कि ये इसका होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम दीगर ममालिक की मिसालें तो बहुत लेते हैं लेकिन हम शायद उनसे सीखते कम हैं। हम ये नहीं देखते कि उनके कुछ भी हो जाए, सियासी इस्तेहकाम उनका हो ना हो, लेकिन उनकी जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, जो उनका इकोनॉमी की सूरत हाल है, वो किसी तरह से भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे यहाँ ये क्यों मुश्किल है? हुकूमत बारहा ये कह चुकी है कि सियासत का ताल्लुक जो है वो मईशत से नहीं होना चाहिए, मईशत हमारी इतनी स्ट्रांग हो कि सियासी हालात जो भी हो मईशत को उससे कोई धचका ना पहुंचे। ये कितनी जरूरत है सर, और ये कितना समझना हमारे लिए जरूरी है अगर हम आगे जाना चाहते हैं? तो देखिए मिसाके मईशत जो है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि ये पहला चैम्बर है जिसने इसका इनिशिएटिव लिया है। 2 माह पहले हम जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनसे जाकर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वफ्द मिला और उनको हमने ब्रीफ किया कि जी ये लाजमी है मुल्क के लिए। आप बैरूनी ममालिक की क्या बात करती हैं जी, हमारा पड़ोसी मुल्क है, आप उनको देख लें कि इतनी बड़ी वो एक इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी लेके चल रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो या गवर्नमेंट जिसकी भी हो या इलेक्शन हो रहे हो या जो भी चल रहा हो, वहाँ पे जब भी नई गवर्नमेंट आती है वहाँ पे पॉलिसियों का तसलसल है और मईशत से रिलेटेड जो इकोनॉमी जो पॉलिसीज हैं उसमें तसलसल चल रहा होता है, कॉन्टिन्यूस तसलसल चल रहा है। तो यही चीज़ हम पाकिस्तान में हमने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इनिशिएटिव लिया है। हमारी हुकूमत से भी, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों से हमारी बात भी हो रही है, मजीद हम उनको इस तरफ राग़िब कर रहे हैं कि खुदारा आए और बैठें। इस मुल्क की मईशत है तो ये मुल्क है, इस मुल्क की मईशत है, पाकिस्तान है तो आपकी पार्टी है।
آپ تبھی وزیر اعظم بنیں گے، آپ تبھی MNA بنیں گے، آپ تبھی سینیٹر بنیں گے، یہ سب کچھ تب ہوگا ہمارا ملک ہے اور اسی اسٹرانگ معیشت ہے. تو اس کے لیے بیٹھیں. ہم نے ان کو اپنے چیمبرز آف کامرس کی ایگزامپلز ہم دے رہے ہیں کہ چیمبرز آف کامرس میں ہر سال الیکشن ہوتے ہیں اور جب بھی ٹینیور چینج ہوتا ہے 1 اکتوبر کو جو بھی نئے پریزیڈنٹ آتے ہیں، جو بھی نئی ٹیم آتی ہیں، 30 ستمبر کی شام کو 5 بجے اس صدر نے جہاں پہ کام چھوڑا ہوتا ہے اگلا پریزیڈنٹ صبح وہیں سے کام شروع کرتا ہے. تو تب ہی ہمارے جو چیمبر آف کامرس ہیں اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور اتنا اچھا پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ کام کریں. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے میثاق معیشت کو سائن کریں. دیکھیں میثاق جمہوریت تو انہوں نے سائن کر لیا، لیکن اس ملک کی معیشت کا سوچنا ضروری ہے. میثاق معیشت کو سائن کریں میثاق جمہوریت کے ساتھ ساتھ. تو اس سے یہ ہوگا کہ اب ملک کی جو آپ کی اکنامک پالیسیز ہیں وہ پریویل کریں گی. پھر آپ کی جو فورن انویسٹمنٹ ہے، دوسرے ملک جو غیر ملکی ہیں، ان کا اعتماد آپ پہ پڑے گا کہ حکومت یہاں پہ جو بھی ہو، ان کی ٹیکس کی پالیسی، ان کی انڈسٹریل کی پالیسی، ان کی ایکسپورٹ پالیسی کم از کم اگلے 15 سال 20 سال 5 سال کے لیے چلنی ہے. تو تب آپ کا ملک زیادہ ترقی کرے گا. بالکل صحیح. بہت شکریہ ملک شاہد سلیم، سابق صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس، ہمارے لائن پر موجود تھے. وقت دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پر کچھ دیگر جو سٹوریز ہیں وہ بھی شامل کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان کہتی ہیں کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جن کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا سامنا ہے. حالیہ سیلاب اور بارشیں بھی موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہیں. اسلام آباد میں پری کوپ کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ کئی اور ممالک کو بھی اس صورتحال کا سامنا ہے. صدف افضل کی رپورٹ دیکھیے. نومبر میں مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہونے والی اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی سے متعلق سالانہ کانفرنس، جسے کانفرنس آف دی پارٹیز COP27 بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے انسٹیٹیوٹ آف ریجنل سٹڈیز میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور مستقبل میں موسمی خطرات سے بچاؤ کے حوالے سے جامع منصوبے کی تیاری اور عملی اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے. I will say what went on in Pakistan this year as a century-breaking climate event will not stay in Pakistan. That will be our slogan for COP27. And Pakistan at COP27 is aiming to do more than a few things. We will be enhancing and changing our goals. So what does that mean? It means that we are looking at how we can take the best away, not for ourselves alone, but for a collective, regional and global format. پاکستان میں مصر کے سفیر ڈاکٹر طارق داروغ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوششیں کرنا ہوں گی. پاکستان میں فرانس کے سفیر نیکولس گالے نے کہا کہ جنوبی ایشیائی ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی وجہ سے سب سے زیادہ خطرے میں ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات، بالخصوص پاکستان میں ہونے والی تباہیاں COP27 میں بحث کا ایک اہم موضوع ہوں گے. صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. حکومت وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو توانائی کی پیداوار میں خود کفیل بنانے کے لیے پرعزم ہے. حکومت کی ہائیڈرل کے ساتھ کول، شمسی، ونڈ اور دوسرے متبادل ذرائع سے توانائی کے متعلق پالیسی سے اس شعبے میں مسلسل بہتری آ رہی ہے. مقامی ذرائع کو برقرار لانے کے علاوہ دوست ملکوں سے بھی اس شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر. گزشتہ 4 سالہ دور حکومت میں ملک میں بجلی کے کارخانے ایندھن نہ ہونے اور فنی خرابیوں کے باعث بند ہوئے. 18 بجلی گھروں کے بعض غیر فعال یونٹ فنی نقائص پر 1 سال تک بند رہے. سابقہ حکومت میں فنی خرابیاں دور کرنے، بروقت مرمت اور فاضل پرزوں کی تبدیلی نہیں کی گئی.
زیادہ تر خرابیاں انتظامی نوعیت کی اور کچھ کا تعلق پالیسی فیصلوں سے رہا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے رواں سال اپریل میں حکومت سنبھالتے ہی نقائص اور فنی خرابیاں فوری دور کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ایسی غفلت اور لاپرواہی ناقابل برداشت ہے۔ ملک کے اندر 35,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ 6,000 میگا واٹ ہائیڈل پاور برف پگھلے گی تو وہ انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ بدقسمتی سے جو پلانٹس سی پیک کے سارے کول بیس پاور پلانٹس تھے یا کچھ 400-500 میگا واٹ سولر اور کچھ ونڈ پروجیکٹس لگے تھے، اور پھر اس کے علاوہ نئے پلانٹس 5,000 میگا واٹ LNG کی بنیاد پر لگائے گئے۔ ان میں سے ایک جو 2019 میں چلنا تھا 1250 میگا واٹ کا، وہ منصوبہ 4 سال ہو گئے بند پڑا ہے، وہ نہیں چل سکا۔ ملک کی توانائی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد اور سولر پاور پلانٹس کی جلد تعمیر کی بھی ہدایت کی۔ I think it is equally important to start thinking of the powerhouse, and there you damn well help Pakistan's economy immensely, irrigate our lands and have other very important aspects attached to it, controls sedimentation and flash floods, etc. This is extremely important for our economy. Do it very speedily. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے تھرکول بلاک 2 میں سندھ اینگرو کول مائن کمپنی کی توسیع منصوبے کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ تھرکول منصوبے سے 300 سال کی بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ 1,00,000 میگا واٹ اگر آپ سالانہ بجلی تھرکول سے پیدا کریں تو 300 سال یہ خزانہ آپ کے پاس موجود ہے۔ تھرکول کو اگر ہم پروموٹ کریں تو پاکستان کا زر مبادلہ بچے گا، پاکستان کی صنعتیں سستی مصنوعات بنا سکیں گی اور پاکستان کی جو معیشت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے ترقی کر سکے گی۔ عالمی منڈی میں کوئلے کی قیمت 67 سے لے کر $44 پر آ گئی ہے۔ سالانہ $7 ارب تک زر مبادلہ بھی اس منصوبے سے بچایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ 100% تھرکول سپلائی کیا جائے تو $بلین بچ جائیں گے اور پاور پروجیکٹ میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھ کر 2,640 میگا واٹ ہو جائے گی۔ آئندہ سال تک تھر کے کوئلے سے ملکی معیشت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ تھرکول پاکستان کی معیشت کا گیم چینجر ہے۔ اس کوئلے سے پورے پاکستان کو روشن کیا جا سکتا ہے جبکہ صنعت کے پہیوں کو توانائی دی جا سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تھر کا کوئلہ 70 میٹرک ٹن اگر فی سال برآمد کیا جائے تو زر مبادلہ کی مد میں $4 ارب کا مزید اضافہ ہوگا۔ دسمبر میں تھرکول بجلی کی پیداوار 1320 میگا واٹ اور آئندہ سال موسم گرما تک 2640 میگا واٹ ہو جائے گی۔ حکومت کوئلے کو توانائی کے لیے بروقار لانے کے علاوہ شمسی سمیت متبادل ذرائع پر بھی بھرپور توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ گزشتہ 3 غیر ملکی دوروں میں SCO، اقوام متحدہ اور سیکا سربراہ اجلاس میں بھی وزیراعظم محمد شہباز شریف کی توجہ پاکستان کے توانائی کے مسائل کو حل کرنے پر مرکوز رہی۔ محمد نید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، ٹیلی ویژن، اسٹیج اور فلم کے معروف کہنا مشق اداکار سلیم ناصر کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 33 برس بیت گئے۔ حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ دیکھیے۔ معروف ٹی وی اداکار سلیم ناصر کا اصل نام شیر خان تھا۔ وہ بھارت کے شہر ناگپور کے ایک علمی گھرانے میں 19 نومبر 1944 میں پیدا ہوئے۔ ان کی مادری زبان پشتو تھی مگر انہیں اردو زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ سلیم ناصر نے اپنے کیریئر کا آغاز پبلک ریلیشننگ آفیسر کے طور پر کراچی سے کیا، بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہوئے۔ سلیم ناصر اپنی مقناطیسی شخصیت اور فن اداکاری میں غیر معمولی صلاحیت اور اپنے انتہائی معیاری کام کی وجہ سے بہت جلد ہر دل عزیز ہو گئے۔ سلیم ناصر کو جو کردار دیا گیا وہ انہوں نے اتنی خوبی سے نبھایا کہ وہ امر ہو گیا اور ایسا محسوس ہوا گویا کردار انہی کے لیے تخلیق کیا گیا ہو۔ دراصل ہم اپنے اندر چھپے ہوئے جہنموں کو نہیں دیکھ سکتے ورنہ بہت اچھا ہوتا۔ شاید یہ بات ہے کہ ہم جان بوجھ کے انجان بن جاتے ہیں۔ سلیم ناصر کو تاریخی، سنجیدہ اور مزاحیہ اداکاری میں کمال حاصل تھا۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں آخری چٹان، آنگن ٹیڑھا اور انکہی کے علاوہ متعدد پلیز میں ایسا یادگار کام کیا کہ دیکھنے والوں کے دلوں پر نقش ہو گیا۔ ہماری بے وقت زندگی کے لیے اس نے اپنی قیمتی جان گنوا دی۔ اگر ہمارے دشمن علمیوں کو پیارے ہو گئے نا تو سارے کام ہمیں کرنا پڑیں گے اور ہمارا موڈ نہیں ہے آج کام کرنے کا۔ سلیم ناصر کو ان کی شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں
सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। फ़न अदाकारी के इस दरख्शंदा सितारे ने 19 अक्टूबर 1989 को हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के सबब इस दार फ़ानी को खैरबाद कहा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ एट 6 शो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।